It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh
10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. No, my soul, I worship Your holy name. 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 Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my
कलीसिया में अगर हमारे ऊपर बहुत सी, मैं अपने जीवन से सिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे विषम परिस्थितियों में डालकर बहुत सारी बातें सिखाई है। धीरज धरना, धैर्य रखना। आपको मालूम है, हमारे जीवन में जब संकट, मुसीबत, विपत्तियां, परेशानी आती हैं तो हम ये कहते हैं ये पहाड़ हट जाए। हमें सिखाया भी जाता है कि तुम कहो ये पहाड़ तुम्हारे सामने से हट जाए। पहाड़ बोलने से बीमारी होती है, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो वो होता है। बहुत से ऐसी बातें होती हैं आपके जीवन में। संकट ले लो, परेशानी ले लो, नौकरी का छूट जाना, बहुत दिनों तक बेरोजगारी का होना, पूरे रिश्ते नातों का उल्टा पुल्टा हो जाना, है ना। वचन जाने बगैर प्रार्थना करना व्यर्थ है। जैसे आज की सुबह मुझे बार बार प्रभु बोल रहा था, और जो मैं आपको बार बार सिखाती हूँ, जो व्यवस्था, परमेश्वर की विधि और व्यवस्था और नियम को सीखने से अपने कानों को फेर लेता है। पास्टर है बोलो, पास्टर है सिखाओ, बोलने वाला सिखाने वाला सिखाए। हम तो करेंगे वही जो हमको करना है। ऐसे लोगों को की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, जो सिर्फ अपनी इच्छाओं को प्रभु के आगे रखते हैं, अपनी लालसाओं को प्रभु के आगे रखते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनता। दूसरा, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है। मैं आपको ना एक बात, अच्छी बात बोलना चाहती हूँ। हो सकता है आपको इस नए महीने में एकदम आप नींद से जाग उठे, ठीक है। लूसीफर ने क्या सिगरेट पिया था? नहीं ना। लूसीफर व्यभिचार किया था क्या? नहीं किया ना। पर लूसीफर फिर कैसे नीचे गिरा दिया गया? घमंड। मतलब सोचो, सिगरेट, अब ये नहीं कि इंसान सिगरेट पीने लग जाए या व्यभिचार, मतलब मैं आप और अपने लिए देखें कि हम कितने जल्दी दूसरों को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं, उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, दोष लगाना शुरू कर देते हैं, इसके कारण, उसके कारण, इसके कारण, उसके कारण। परंतु नहीं, नए साल में सीखो, हमें दोष नहीं लगाना है। किसी के भी कारण कुछ नहीं होता है। आप और मैं परमेश्वर के सामने जिम्मेदार हैं, आप और मैं। तो आप ये सोचो कि लूसीफर का घमंड, लूसीफर का विद्रोह करना अपने परमेश्वर के सामने, मैं तो सोचती हूँ, मैं बार बार सोचती हूँ, आप भी सोचा करो कि जो साक्षात परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर के अगेंस्ट जा सकता है, परमेश्वर के अगेंस्ट उसका विचार हो सकता है, परमेश्वर से अपने आप को वो कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। तो आप तो पृथ्वी में रहते हो, आप तो चर्च में रहते हो, आप तो चर्च के अंदर संग करते हो। तो सबसे ज़्यादा परमेश्वर ख्यालों को देखता है, विचारों को देखता है, भावनाओं को देखता है, कल्पनाओं को देखता है। अपनी ऊंची ऊंची कल्पना, अपनी ऊंची ऊंची बातों को जो उलझे हैं, तुम उसको मसीह के वचन में क्या कर लो? कैद कर लो, कैद कर लो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो कई बार आपको और मुझको भी इन चीज़ों को, आपको और मुझको समझना है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य, आत्मिक मनुष्य कभी किसी को नहीं जांचता, और ना कोई आत्मिक मनुष्य को जांचे। आपको किसी को जांचने का अधिकार नहीं है, किसी के विरोध में बोलने का आपको अधिकार नहीं है। जो जीव परमेश्वर ने आपको दी है ना, वो आपके खुद के लिए दी है कि आप जब भी परमेश्वर के सामने आए, अगर परमेश्वर की आत्मा आपको रियलाइज कराती है, एहसास कराती है कि मैं गलत सोच रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मैंने गलत बोला है ना, आप गलत किया है, तो आपको एहसास होना चाहिए। तो आप अपने द्वारा ही जांचे जाओगे, और अपनी गलतियों को जब आप प्रभु के सामने, प्रभु जानता है, मेरी सोच जानता है। क्या परमेश्वर लूसीफर की आवाज़ को नहीं जानता था? जानता था, वो जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। यही बातें तो परमेश्वर के लिए भय का वो होता है। हमारी प्रार्थना निस्वार्थ है कि हमारी प्रार्थना स्वार्थ से भरी हुई है, हमारी सेवा निस्वार्थ है कि स्वार्थ से भरी हुई है, ये हम जानते हैं। कोई माँ अपने बच्चे की सेवा स्वार्थ से नहीं करती।
हर माँ अपने बच्चे की सेवा निस्वार्थ भावना से करती है, और जो निस्वार्थ भावना से अपने बच्चे की सेवा करती है, वो बच्चा उसको कुछ दे या ना दे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने बच्चे को दूध इसलिए थोड़ी ना पिलाती है, उसको नहला धुला के बड़ा इसलिए नहीं करती है कि वो चलो ये बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल सूद समेत इसकी कमाई अमाई मैं खाऊंगी, ये सोच के नहीं करती है। वो प्यार है, सेम ऐसी ही हमारा परमेश्वर है, प्यार है। एक स्टोरी नए साल में आपको मैं बताती हूँ। पैराशूट से भी बहुत ऐसे कलाकारी लोग हवाओं में करते हैं, ऊंचा ऊंचा उठना, प्लेन में ऊंचा ऊंचा उठना भी। तो इसी तरह से बिल्कुल वो पैराशूट में कैसे वो छलांग लगाते, क्या क्या नाम देते हैं उसको, ये सब है। और उसके बाद नीचे उतरने के लिए कैसे वो चीज़ खुल जाती है, अगर नहीं खुली तो कैसे इंसान गिर जाता है, अगर वो डोरी ना हो तो इंसान कैसे पल भर में गिर जाते हैं। इसी प्रकार ऐसी हवाओं में उड़ते 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 इतनी हाइट तक पहुंच जाना, पर एकदम ऊपर जाके कुछ उनका खड़ा तो एक ऊपर से नीचे टप से गिरा, उसका प्राण चला गया। दूसरा भी टप से गिरा, उसका प्राण, टप से तो नहीं गिरते हैं, आप देखो कैसे गिरते हैं। और तीसरा जो था वो गिरा ही नहीं, धीरे 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 करके वो आया है। तो जब इंटरव्यू उससे लिया गया, पूछा गया, जी भाई ये सारे 2-3 तुम्हारे जो संगी और साथी थे वो तो कैसे गिर पाए, पर तुम कैसे नहीं गिरे? देखो अगर वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं गिरा, क्योंकि जो डोरी मेरे पैर पर और मेरे शरीर में थी उसने मुझे जकड़ कर बांध रखा था, इसलिए मैं नहीं गिरा। आज मैं उस बात से, इस कहानी से मैंने ये सीखा। मैंने कहा सच प्रभु, यदि मैं आपको पकड़ती होती तो मैं तो कब से ऊपर से नीचे गिर गई होती, परंतु आपके इस प्रेम और स्नेह भरी डोरी ने जो मुझे बांध कर रखा है, जो मुझे गिरने नहीं देता। सारा श्रेय परमेश्वर को देना चाहिए। हम कुछ भी नहीं है, ना हमारी प्रार्थना कुछ है, न हमारी आराधना कुछ है, ना हमारा यहाँ कुछ आना है। आपको पता है उनकी पकड़ कितनी ढीली थी, जो उन्होंने उस रस्सी को छोड़ा और वो अपने प्राण को गंवा बैठे। अगर ये भी उस रस्सी को पकड़ा होता तो शायद ही है जो चीज़ है वो उसको वो पकड़ पाती, उसको बचा पाती। पर उसने कहा नहीं, मेरी पकड़ तो थी ही नहीं, उनकी पकड़ थी, इसलिए वो नाश हो गए, परंतु मेरी पकड़ तो वो रस्सी थी। अब मैंने उस रस्सी को कहा, हाँ प्रभु, वो रस्सी मेरी आप है, जिसको आपने मुझे कस के बांध रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने आपको और मुझको आशीष देने के लिए बुलाया है। तो मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 146, 146 अध्याय को। दाऊद एक उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, और आज भी हम धन्यवाद में बैठे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन। सामूहिक है कि व्यक्तिगत है? सामूहिक है कि व्यक्तिगत है ना? जब एक व्यक्ति दिन भर अपने घर में स्तुति करता है, वो कलीसिया में वो स्तुति करने वाले का चेहरा कुछ और ही होता है, वो अलग ही होता है, वो अलग ही होता है। जो दिन भर अपने परमेश्वर के लिए स्तुति करता है, गीत गाता है। तीसरा वचन लिखा, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। ये मैंने प्रभु के वचन से सीखा है, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति, मतलब किसी भी मनुष्य, किसी भी प्रधान में उद्धार, छुटकारा, जो मुसीबत और संकट आपके जीवन में आते हैं उससे नहीं हो सकता। अगर संकट, मुसीबत, परेशानी, रोग, बीमारी, कोई भी बातें आपकी जिंदगी में होती हैं, तो पहले आपको क्या, ना मनुष्य पर ना प्रधानों पर। नहीं, ये लिखा है। तो ये क्या कहता, दाऊद क्या कहता चौथा वचन में, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। किसकी? प्रधानों की और मनुष्य की, जिसके पास आप अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। परंतु 5वां वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक, ये आपके वचन है। आपको पता है, जब वचन आप पढ़ते हो, सुनते हो,
अगर वो वचन आपके अंदर कार्य ना करे, आपके अंदर बदलाव ना लाए, आपके अंदर परिवर्तन ना लाए। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग, और मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा बोलती हूँ, हम में से ज़्यादा उपदेशक कोई ना बने, सिखाने वाला ना बने। ये बाइबल कहती है, हम सिखाने वालों का न्याय सबसे पहले होगा, सबसे पहले होगा। जितना ज़्यादा आप दूसरों को सिखाते हो ना, उतना अधिक आप कटघरे में खड़े हो। आपका न्याय जो आप सिखा रहे हो, जो मैं सिखा रही हूँ, उसी के अनुसार मेरा न्याय होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है तो इस वचन से आप देखेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वो काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। कि मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? समझ रहे हो? कई बार दोष लगाना एक सिखाने पर भी होता है, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, हम तो ऐसे नहीं करते, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो। दोष लगाना और किसी को सिखाना, प्यार से किसी को बोल, अरे ये नुकसान है, यहाँ गड्ढा है, आप ये हो जाएगा। तू कोई भी क्यों ना हो, तू कोई भी क्यों ना हो। समझ रहे हैं आपको? आप इस चीज को नए साल में हम जब कलीसिया प्रार्थना करती है, कौन है कलीसिया? जो अपने पाप से पश्चाताप करी और जिसने यीशु मसीह के नाम से मन फिराव से बपतिस्मा लिया। और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो उन्होंने पवित्र आत्मा को भेंट के स्वरूप में पाया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, पवित्र आत्मा को उन्होंने भेंट के स्वरूप पाया। तभी वो पवित्र आत्मा उनको प्रतिदिन, हमने प्रतिदिन, आज भी हम प्रतिदिन सीखते हैं प्रेरितों से, प्रतिदिन वो सीखते हैं, प्रतिदिन संगति करते हैं, प्रतिदिन वो रोटी तोड़ते हैं, प्रतिदिन वो घर घर में, हमारे समय में घर घर की हम कैसे आत्मिक जीवन की उन्नति हमारी हुई, हम घर घर में, हम कैसे आपको अपने साथ स्टार्टिंग में लेके आज भी हम आपको लेके जाते रहे, पर कब तक हम आपको गोद में उठा के रखेंगे? अब तो आपको भी खुद ही रास्ता निकालना चाहिए कि कब कहाँ हमें वचन को, परमेश्वर की शिक्षा हमको सुनने के लिए मिल जाए। देखा क्या ये धन्य है वे, आशीषित हैं वे, आशीषित हैं वे। अगर आज इस महीने में आप आशीषित होना चाहते हैं तो अपने ऊपर भरोसा मत रखिए, प्रधानों पर भरोसा मत रखिए, किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखिए, किसी मनुष्य की प्रार्थना पर आधारित मत रहिए। बार बार किसी मनुष्य को प्रार्थना के लिए नहीं करें, अपने स्वयं की प्रार्थना पर निकल। कब प्रभु प्राचीन के पास जाना है, कब स्वयं के लिए प्रार्थना करना है, कब गिड़गिड़ाना है, कब विनती करना है, कब अधिकार, ये पूरी बाइबल में लिखा है। और मैं आपको बताऊं, ये सारी विषम परिस्थितियां, संकट, मुसीबत, जब मैं विषम परिस्थिति कहती हूँ तो 1 वर्ड में मैं कह देती हूँ, आप समझ जाया करो इसके अंदर क्या 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 आता है। हल्का सा पेट दर्द भी आ जाएगा, हल्का सा सर दर्द भी आ जाएगा, हल्का सा पेट का दर्द भी आ जाएगा, लूज मोशन भी आ जाएगा, हाथ पैर का दर्द हो जाएगा, ऐंठन हो जाएगी, बहुत सी बातें हो जाएंगी, बेरोजगारी हो जाएंगी, बार बार इंटरव्यू का देना, सेलेक्ट नहीं होना, ये भी हो जाएगा, बिल का पास नहीं होना हो जाएगा, तुम्हारी तनख्वाह का रुक जाए, ये बहुत सी बातें हो जाती हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? उठते बैठते चलते फिरते अपने परमेश्वर से ना वचन मांगना है। क्या मांगना है? प्रभु इस संकट के लिए, इस परिस्थिति के लिए मुझे वचन दे। और प्रभु आपको वचन देगा, परमेश्वर आपको वचन देगा। कई बार जब आपके जीवनों में दुखों का बहुत पहाड़ आ जाता है तो हमेशा हम प्रार्थना करते हैं ये टल जाए, ये टल जाए, ये टल जाए। पर आप प्रार्थना करो, प्रभु इस स्थिति में आप में बने रहने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए मुझे धीरजवंत बनाइए। धीरज होना बहुत बड़ी बात है।
कई बार हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर बहुत देर से सुनता है, पर सुनता जरूर है, पर उस बीच में परमेश्वर हमको धीरजवंत बनाता है, हमें धीरजवंत बनाता है। तो नए साल में हमें सीखना है कि परिस्थितियों को सहने की क्षमता मांगो, दुखों को सहने की क्षमता मांगो, क्योंकि हमें बहुत बड़े दुख उठाकर, बहुत ही दुख उठाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और मैंने इस हफ्ते में सीखा, 2-1 लोगों को मैंने शेयर भी किया जो मेरे पास आ जाते हैं, बैठते हैं। मैंने सीखा इस हफ्ते में, और मैंने हाँ और आमीन से कहा, मानो जैसे प्रभु ने मुझसे कहा कि सुख में रहने से, एक अच्छा घर है, अच्छा सोना है, खाना, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, रोग नहीं है, बीमारी नहीं, कुछ नहीं है, सुख में हम रह रहे हैं, पर बिना परमेश्वर के हैं तो वो सुख नहीं है। पर अगर हम दुख में हैं, पर मेरे साथ परमेश्वर है, मुझे सहने की शक्ति देता है, मुझे धीरजवंत बनाता है, मुझे आशा देता है कि सुबह होगी और सुबह होगी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा, पर उस दुख में, संकट में, उस रोग में, उस बीमारी में मेरा प्रभु मेरे साथ है। और जब मेरा प्रभु मेरे साथ है तो मुझे क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये धन्य है! अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, तो जिसका सहायक, बोलो जिसका सहायक, लिख लीजिए अपने घर की दीवार में, मेरा सहायक याकूब का परमेश्वर है, मेरा सहायक यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा सहायक मेरा यहोवा यीरे है, मेरा सहायक मेरा यहोवा है। ये सब बातें हमें परमेश्वर के साथ बैठने से हमको मिलती है। हालेलुया। फिर आप देखो महीने का 28 दिन कैसे निकलता है, मानो एक चुटकी में निकलता है। यह हमारे जीवन का अनुभव है। और देखो उसी के नीचे कितना अच्छा लिखा है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, मतलब कार्य का करने वाला, जिसने आकाश में, पृथ्वी में, समुद्र में और समुद्र के अंदर जो कुछ है, पृथ्वी में जो कुछ है। तो मैंने कहा मैं भी तो हूँ, पृथ्वी में मैं भी तो हूँ, आकाश के नीचे मैं भी तो हूँ, इस पृथ्वी में मैं भी तो हूँ। तो इस पृथ्वी का कर्ता मेरा प्रभु है, तो मेरे लिए कार्य करने वाला कोई मनुष्य नहीं, मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि वह अपना वचन हमेशा के लिए पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है क्या क्या करता है, देखो आप, वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, वो भूखों को रोटी देता है, या वह बंदियों को छुड़ाता है, या वह अंधों को आंखें देता है, या वह झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, या वह धर्मियों से प्रेम रखता है, या वह परदेशियों की रक्षा करता है, अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्ट के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी में काम करता है, समुद्र में काम करता है, वो मेरे लिए भी करता है। वो क्या क्या करता है? यदि हम पिसे जाएं, यदि हम भूखे रहें, हम सताए जाएं, दुष्ट हमको घूसे मारे, कोई हमारे साथ अत्याचार करे, हमारे लाभ को हानि में बदल दे, हमें धोखा दे दे, हमारी सारी चीजें ले ले, हमारी प्रॉपर्टी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, परंतु मेरा परमेश्वर यहोवा मेरी तो रक्षा भी करता है, मुझे संभालता भी है, मुझे देता भी है, परंतु वो दुष्ट के मार्ग को क्या कर देता है? दुष्ट के मार्ग टेढ़े मेढ़े होते हैं, हमारे मार्ग, धर्मियों के मार्ग हमेशा कुशलता के होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए आप भी इसी प्रकार जब कभी आप बाइबल पढ़ें तो दूसरों के लिए ना पढ़ें, दूसरों को सिखाने के लिए ना पढ़ें, दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए ना पढ़ें। आज से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे वचन चाहिए, मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए प्रभु। और सच बात है, हमने आज भी यही कहा, प्रभु हमने तो रोज की रोटी रोज मांगना ही छोड़ दिया, हमने तो संसार की रोटी हो, ये प्रार्थनाएं नहीं। प्रार्थना आसमानी होती हैं, प्रार्थनाएं स्वर्गीय होती हैं, प्रार्थनाएं इस चीज की होती हैं। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक। आपको ये भी प्रार्थना करना है,
अगूर के वचन जो मैंने पढ़ा और मैंने इस पर मनन किया और अध्ययन किया, और आप भी इस बात को मनन करो, अध्ययन करो। जो वचन आपको यहाँ दिया जाता है उसे अपने घर में जाएं, उसे बार बार पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें। अगूर के वचन, याके के पुत्र अगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उकाल से ये कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ। क्यों उसने कहा कि मैं पशु सरीखा हूँ? पशु का क्या मतलब होता है? विवेक का ना होना। पशु विवेक नहीं रखते, उनको शुद्ध और अशुद्ध में अंतर नहीं है। उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसमें उनको अंतर नहीं, किसी चीज में उनको अंतर नहीं है। उनके पास विवेक नहीं होता, उनके पास आत्मा नहीं होती। पशु के पास आत्मा नहीं है। और ये कहता है निश्चय ही मैं क्या हूँ, पशु सरीखा हूँ, वरन मैं तो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हूँ। तभी तो कहता है कि मैं पशु के समान हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। जिसके पास समझ नहीं होती ना, परमेश्वर उसको अपने राज्य के लिए कभी नहीं इस्तेमाल करता, कभी नहीं, कभी नहीं। असमझ क्या होती है आपको इसके लिए स्टडी लेना पड़ेगा। आपके पास समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, कि सामने वाला मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है, क्या मैं उसको समझती हूँ? वो मुझसे क्या चाहता है, मैं समझती हूँ? क्या मेरे माता पिता मुझसे क्या चाहते हैं? मेरी प्रिंसिपल मुझसे क्या चाहती है? मेरे देश की सरकार मुझसे क्या चाहती है? क्या मैं उस चीज़ को समझती हूँ? मेरा पास्टर मुझसे क्या चाहता है? मुझे क्यों शिक्षा देता है? क्या मैं उस बात को समझती हूँ? अगर आप उस चीज़ को नहीं समझते, जिनके पास समझ नहीं है, परमेश्वर उनको कभी भी अपने उपयोग में नहीं लाता है, कभी ना समझी मुझे भी पसंद नहीं है ना। हर बुद्धिमान स्त्री, बाइबल कहती है, अपने बच्चों के चाल चलन को वो ध्यान से देखती है और फिर उसको काम देखती है। क्या काम देखती है? क्या देखती है? बोलने में बहुत अच्छे होते हैं उनको देते हैं, जो बहुत सुंदर होते हैं उनको देते हैं, जो बहुत दिल डॉल वाले होते हैं उनको देते हैं? नहीं, ये सब कुछ चीज़ें नहीं देखी जाती, ये सब कुछ चीज़ें नहीं देखी जाती। परंतु क्या देखी जाती है? परमेश्वर के साथ आपकी नज़दीकी। पवित्र आत्मा के लिए बाइबल कहती है कि प्रेरितों के काम में कितनी अच्छी बातें लिखी। आइए मेरे साथ पढ़ें प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। उसका 4 वचन में लिखा है, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी। बोलो, मिलकर उन्हें आज्ञा दी। जब परमेश्वर की भेंट हमसे होती है तो वो हमें आज्ञा देता है। जब हम प्रतिदिन अपने परमेश्वर से मॉर्निंग, दोपहर, इवनिंग, पूरे समय उठते बैठते चलते फिरते जब हम उसको पुकारते हैं तो हमको मिलता है, और परमेश्वर की ओर से हमें एक आज्ञा मिलती है, और वह आज्ञा यह है कि यरूशलेम को ना छोड़ो। बोलो, यरूशलेम बोले तो प्रार्थना करना ना छोड़ो। यरूशलेम का मतलब होता है परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर को, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। बोलो, प्रतिज्ञा अगर परमेश्वर ने हमें दी है कि मैं अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा दूंगा, क्या ये धन्य है वह जिसका याकूब का परमेश्वर सहायक है। तो सहायक है तो एक सहायक आत्मा हमें देगा ऑफिस के हर काम में, बॉस से निपटने के लिए, जो आपके अगेंस्ट में खड़े होते हैं उनके लिए। इसलिए उसने कहा तुम प्रार्थना करना ना छोड़ो। तो जब संकट और मुसीबत और परेशानी आती है तो उसको हटने के लिए प्रार्थना मत करो, उसके लिए प्रभु मुझे एक वचन दे। नहीं तो आप हमेशा एक निर्बल कलीसिया, शायद आप उठाए लिए जाने वाली कलीसिया आप नहीं बन सकते। 32 साल मायने रखता है, 32 साल मायने रखता है। बोलो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट। लिखा है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। लिखा है क्योंकि जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। तुमने सुना है पवित्र आत्मा की चर्चा कि अंतिम समय में ऐसा होगा कि मैं एक आत्मिक बेदारी को भेजूंगा। योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी होगी, और हम रोज इस बात को बोलते हैं, जवान दर्शन देखेंगे। अरे तुम भरी जवानी में पहुंच रहे हो कलीसिया,
आपको समझना है चर्च। चौथा वचन फिर से पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। क्या आज्ञा मिली है? मतलब प्रार्थना करना ना छोड़ना है। उठते बैठते चलते फिरते जहां पे भी रहो, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और क्या लिखा है? आपके का शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। दो बातें अलग हैं। तुम्हारी देह मंदिर है और तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर। सो परमेश्वर का वचन है, ये आज्ञा है। और लिखा है प्रतिज्ञा के पूरे होने की क्या रखा? परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट, बाट जोने में जो धीरज है ना, वो धीरज आपके अंदर, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, बपतिस्मा पाओगे। और क्यों? देखो क्यों यीशु मसीह ने ये कहा उसके 6वें वचन में, यीशु का स्वर्गारोहण। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। देखो यीशु मसीह ने चेलों को कितनी अच्छी बात सिखाई। ने उनसे कहा, उस समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। वो किसी के अधिकार में नहीं है, तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे नाम के गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के बपतिस्मे की पहचान क्या है? हम चुप नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर कोई इंसान चुप नहीं बैठ सकता। बाइबल गलत नहीं है। सामरिया में, यहूदियों में, यरूशलेम में और सारे पृथ्वी की छोर पर तुम हमारे गवाह होगे। मतलब हमारे पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है ही नहीं। हमें परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा की आवश्यकता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप मेरे साथ निकालें, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम और उसका 5वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। 27 वचन से मैं पढ़ने जा रही हूँ। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उससे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हैं। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार करता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने, बोलो, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा का दान जो आज्ञा मानते हैं। ये थोड़ी ना बहस करते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा बहस करते हैं, विवाद करते हैं, बुरा मानते हैं, है ना, अपने आप को बहुत ही नहीं। नए नियम की कलीसिया में जब परमेश्वर आपको ज्वाइन करता है ना, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको बुराइयों से छुड़ाता है। बार कहा, वो आपको पहले आपके वंश के श्रापों से, आपके माँ बाप के चाल चलन से, आपके बाप दादों के चाल चलन से, वह आपको पहले सारी बुराइयों से वो आपको धोकर शुद्ध करेगा। आपको अनाज्ञाकारी नहीं, आपको आज्ञाकारी बनाएगा। तब परमेश्वर, लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा का दान देगा, ताकि तुम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाओ, परमेश्वर की देह में परमेश्वर के हिस्से बनो और परमेश्वर का काम करो। मैं जो बताने जा रही हूँ, एक भयंकर अकाल पड़ेगा, एक भयंकर अकाल पड़ने जा रहा है। अनाज बहुत महंगा हो जाएगा, शायद आपको खरीदने की शक्ति भी नहीं रहेगी। उस समय आप क्या करोगे? उस समय आप क्या करोगे? आपका विश्वास
कब पर खा जाता है, कब पर खा जाता है। जब आपके पास पर्स में पैसे हो, खूब खर्च करने को, खूब खाओ, खूब पियो, खूब मस्ती करो, खूब हालेलुया गाओ। तुम्हारे तो पेट भरे रहते तो भी तुम नहीं गाते हो, तो खाली पेट में तुम क्या गाओगे वही जाने। परंतु बाइबल कहती है दुखों में पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देगा। उस विधवा के जब तक अकाल हुआ उसके घर का तेल नहीं घटा। उसने कहा अपना तेल लाओ, अपने पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन लेकर आओ। आप सोचिए चर्च, कलीसिया, अगर कलीसिया है कि नहीं है उसके लिए आपको मालूम होना पड़ेगा। बाइबल में ढूंढो, नहीं तो प्रेरितों के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करो। क्या ही धन्य है वे जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर है। अपने स्थान में बार बार बोले, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।